آپ سمپلی اسٹیٹمنٹ لینا چاہیں گے کہ بچوں کا سب سے بڑا یہ بات کہنا ہے کہ بھائی میں امتحان دے کے آیا, 190 نمبر کا امتحان میرا ہوا, آئی ڈونٹ نو کیسے ان کو پتا چلتا ہے 190 نمبر کا, لیکن 190 نمبر کا کہتے ہیں میرا امتحان ہوا, میرے نمبر آئے 120. اب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جو ٹیسٹ کی جو کی تھی اس میں کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے پرابلمس آ جاتے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں شاید پریزمپٹیولی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایکچوئل کیٹیگری سے مسائل آ رہے ہیں, تو ان کو کیسے بتایا جائے کہ کیسے آپ ایشورنس کرا سکتے ہیں کہ بھائی وہ صرف وہاں پہ ہوا, یہاں ایسا نہیں ہوا. دیکھیے سب سے پہلی چیز جو کوشچن بینک کی جو ہوتی ہے اس کوشچن بینک میں ہوتی ہے, کوشچن بینک میں سوالات ہو ان کے جوابات, صحیح جوابات کی لسٹ. کوشچن بینک ٹیپس کے پاس نہیں, نہ انہوں نے بنایا ہے, نہ ان کو کبھی کوئی تعلق رہا ہے, نہ وہ دیکھا ہے. کوشچن بینک جو فائنل ایگزام کا کوشچن بینک وہ پی ایم سی نے بنایا, ہمارے ایکسپرٹس نے بنایا, ریویو ہم لوگوں نے کیا, اس کے بعد اس کو ہم نے سیل کیا, اس کے پراپر کیز میں اسٹرکچر ڈال دیا, اور یہ کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے لکھے گئے, کمپیوٹر میں انپٹ ہوں گے, اس کے بعد انکرپٹ, یہ پیچھے سرور میں پڑے. اب بچہ جب اپنا امتحان دیتا ہے, سبمٹ کرتا ہے, تو اس کے جو بھی جوابات ہوتے ہیں وہ اٹھ کے سرور میں جاتے ہیں. سرور جو ہماری پی ایم سی کی ہے اس سے وہ رزلٹ کو چیک کر کے ایگزام دیتے ہیں. تو یہ تو شک ان کے ذہن سے نکل جانا چاہیے کہ کی غلط ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک سمپل بات بتاؤں, آپ نے جیسے کہا 35% میں امتحان, صاف سیدھی بات, ہزاروں فیل ہوئے اور ہزاروں پاس بھی ہوئے. اگر کی غلط ہوتی تو دیکھیے سمپل سی بات, ایک وہ جوس مشین ہوتی ہے, اگر وہ خراب ہو جائے تو آپ اس پہ انار لگا لیں یا کدو لگا لیں یا گریپ فروٹ لگا لیں, جوس نہیں نکلے. اگر مشین ٹھیک ہے, حلق میں خراب ہے, تو جوس جو صحیح ہے پھل اس کا جوس نکل آئے گا, جو پھل خراب ہے اس کا جوس. بھائی ہر بچہ, کوئی ایسی گارنٹی تو نہیں ہوتی کہ ہر بچہ پاس ہوگا. ایکسپیکٹیشن آپ نے کہا تھا نا ان کی ہے کہ 180. میں جب بھی زندگی میں امتحان میں بیٹھوں میری ایکسپیکٹیشن ہوتی تھی میں 100% آتا, ظالم کبھی 60%. تو اس کا یہ تو مطلب نہیں تھا کہ امتحان کا غلط, اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ میں نے اپنی تیاری شاید پوری طرح سے نہ کی ہو, صحیح طریقے سے نہ کی ہو, شاید اس دن میرا فوکس تھا. تو یہ جو ہے معاملہ, جس آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ 65% بچوں نے بھی امتحان دیا. مجھے بے تحاشا بچوں کے میسج آ رہے ہیں, ہم ڈپریشن میں ہیں, ہم یہ سن رہے ہیں, اور میں ان سب کو ایک ایک جواب دے رہا ہوں. میرے پاس 1500 واٹس ایپ سے زیادہ روزانہ. سب کو میں ایک ہی چیز کہتا ہوں کہ بھائی خدا کے واسطے آپ لوگ یہ سوشل میڈیا بند کر دیجیے 15-20 دن کے لیے, ٹی وی دیکھنا بند کر دیجیے, سننا بند کر دیجیے, امتحان اپنی تیاری پہ فوکس کریں بس. یہ صرف وہ شور مچا رہے ہیں جو فیل ہو گئے ہیں, انہوں نے کسی کے اوپر تو الزام ٹھہرانا ہے, وہ ٹھہرا لیں, مگر جو بچہ پاس ہوا ہے وہ ہزاروں, ان کو بھی تو لے آئیے میدان میں, ان سے بھی تو پوچھیے کہ وہ پھر کیسے پاس ہوا. اچھا اس پہ یہ آبجیکشن بچے کرتے ہیں نا کہ جی ہر بچے کا انڈیویجول ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے جی, اب جس کی کیس ٹھیک نکل آئی اس کی 180 نمبر آ گئی, جس کی نہیں ٹھیک نکل آئی اس کی 120 آ گئی. اس کا بھی دیکھیے کامن سینس بھی ایک چیز. ہمارا کوشچن بینک 2000 سوال نہیں, وہ تو 16 سے 20,000 سوالوں کا کوشچن بینک. ہر سوال کے اوپر ایک نمبر لگا ہوا, سوال کا نمبر ہے 128, اس کا جواب, وہ صحیح جواب اگر جو بھی ہے وہ کی میں نوٹڈ, ٹھیک. وہ سوال آپ کو آئے آپ کے پیپر یا میرے پیپر میں, اس کی تو وہی ہے, کیونکہ اس کا سسٹم میں جواب نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ کے پیپر کی کیز غلط ہے, میرے پیپر کی کیز صحیح, یہ بھی غلط ہے. لوگوں کو دیکھیے اصل میں شاید کمپیوٹر بیسڈ ایگزام پہلے انہوں نے دیا نہیں, یا اگر واقف بھی ہیں تو وہ ماننے کو تیار نہیں. کمپیوٹر بیسڈ ایگزام سے زیادہ انٹیگریٹی امتحان کی نہیں ہوتی, کیونکہ اس کے اندر کوئی سبجیکٹو مارکنگ نہیں. یہی بچے الحمدللہ بھی ایف ایس سی کا امتحان بھی دے کے آ رہے ہیں, وہاں پہ تو سبجیکٹو مارکنگ ہوتی ہے, ایسے لکھتے ہیں, پتا نہیں کہاں ایگزامنر بیٹھا ہے ان کو تو نہیں پتا, وہ ان کا ایسے چیک کرتا ہے, وہ کیا نمبر دیتا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا, نہ چیلنج ہو سکتا, نہ شور مچاتے ہیں. یہ کیوں بات ہے کہ اے لیول پہ کیسے ٹرسٹ کرتے ہیں, سیٹ پہ کیسے ٹرسٹ کرتے ہیں, اور جب یہ یونیورسٹی جائیں گے انشاءاللہ, میڈیکل کالج جائیں گے, وہاں پہ جب وائواز ہوں اس کا ٹرسٹ کیسے کریں گے. اس کے بعد جب انہوں نے ایف سی پی ایس کا امتحان دینا ہے پوسٹ گریجویٹ کے لیے, وہ بھی کمپیوٹر پہ ہوگا, اس کا کیسے ٹرسٹ کریں گے. دیکھیے یہ ایک انہیرنٹ بات ہے, ان بچوں کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ آپ ایک ایگزامینیشن سسٹم میں اگر ٹرسٹ نہیں کریں گے تو آپ سسٹم کا کبھی حصہ بنیں گے. یہ شور شرابے سے نہیں ہو پائے گا, آپ اس سسٹم کو ایکسپٹ کرنا ہے, اس پہ ٹرسٹ کرنا ہے. اگر اعتماد ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا غلط ہے, آپ سے یہ نہیں.
अपना क्वेश्चन बैंक नहीं खोलती है. अच्छा, वो कहते हैं कि क्वेश्चन बैंक हमें ना दे, हमें कीज किस किस में बट स्टोर मुझे है? एक चीज बताइए, कीज किस चीज की देते हैं, किस सवाल की? नहीं मतलब कि जो फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ना, आ खान पाकिस्तान में एक स्टैंडर्ड है, ठीक है जी, जी. वो हर जी सेक्शन वाइज जो जितने भी उनके सेक्शन है उनका जी. तमाम के तमाम का रिजल्ट सेक्शन वाइज भी देता है. अभी जी, एमडी subject कैसे, wise. जी सर, वो अभी एमडी कैसे एक स्टेटमेंट आ गई. नहीं, अभी देखिए बच्चे को जो रिजल्ट आ रहा है कंप्यूटर बेस्ड आधे घंटे के बाद, उसको ये मिल रहा है मेरे 181 नंबर आए हैं 280. वजह ये है ताकि वो फौरी कॉलेजेस में अप्लाई कर सके. जिस दिन इम्तिहान मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह 30 सितंबर के बाद, उसके बाद हर बच्चे के पास एक ऑनलाइन उसके अकाउंट में सर्टिफिकेट आएगा जिसके ऊपर उसका रिजल्ट होगा, सर्टिफाइड बाय पीएमसी कि आपका ये रिजल्ट है. उसमें बायोलॉजी में आपके कितने आए, केमिस्ट्री में कितने आए, फिजिक्स में कितने आए, लॉजिक रीजनिंग में कितने हैं, अंग्रेजी में कितने हैं, उस सब लिखे. तो वो सब वो हम डिस्कस करेंगे, वो कुछ पाने की जरूरत है. हमारा पेपर में वाईफाई बंद हो जाता है, मतलब कि ये समझाया कि इंटरनेट सर्वर है क्या, इंटरनेट है क्या, और फिर इसका वाईफाई से क्या कनेक्शन है, कहाँ तक कनेक्शन है एक्सटर्नल वाईफाई से. देखिए पहली बात, ये ऑनलाइन इम्तिहान, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. दूसरी, जो हमारा सेंटर है, जो टैबलेट्स है और जो सर्वर, वो इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर नहीं है. टैबलेट्स जो हर जो एग्जाम सेंटर है वो पूरा एक यूनिट है, सेल्फ कंटेन यूनिट है. वहां पे सर्वर्स लगे हुए, टैबलेट्स उस सर्वर से कनेक्टेड है लोकल एरिया नेटवर्क से जो वायरलेस इस्तेमाल कर रहा है. मगर उसमें जब इम्तिहान शुरू होता है तो बच्चा अपना रोल नंबर डालता है, अपना पासवर्ड डालता है. जैसे ही वो पासवर्ड डालता है उस सर्वर से उसका पर्चा टैबलेट के अंदर आ जाता है. अब उस टैबलेट के अंदर है कि बच्चा वहां से इम्तिहान सेंटर से निकल के बाहर खड़ा होता है, जहां कोई वाईफाई नहीं होता, फिर भी इम्तिहान चलेगा, रिजल्ट पेपर चलेगा. देखिए ये कई बच्चों ने मुझे कहा कि जी वो हमारा वाईफाई का सिग्नल खत्म हो गया. मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि अच्छा बेटा वाईफाई का सिग्नल खत्म हो गया, तुम्हारा सवाल फिर भी आ रहा था, अगला सवाल आ रहा था, जब तुम जवाब दे पा रहे थे. उन्होंने कहा तो मैंने कहा इसका मतलब सिस्टम चल रहा है. वो टैबलेट के अंदर जो बच्चा सवाल का जवाब दे, उसके बाद उसके पास ऑप्शन होती है उसको एडिट भी करने की. बच्चे सवाल स्किप भी कर सकते हैं और वापस आके बाद में उसका जवाब दे सकते हैं, जो मर्जी ये करना. जब इम्तिहान का टाइम खत्म होता है तो एक स्क्रीन आती है उनके पास कि प्लीज सबमिट फाइनल आंसर्स. ये जब वो सबमिट का बटन दबाते हैं, आखिर में जो भी इन्होंने फाइनल जवाब दिए होते वो उठ के टैबलेट में सेव होंगे और फिर हमारे लोकल सर्वर में आते हैं. उसके बाद एक इंटरनेट कनेक्शन ऑन होता है जहां से लोकल सर्वर हमारे मेन सर्वर को रिजल्ट भेज देता है ताकि इनके एसएमएस पे आ जाए वगैरह. ये तो अब आप एक बात समझ आइए, वाईफाई का कोई ताल्लुक नहीं, इंटरनेट का कोई ताल्लुक नहीं, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं. ये इनका इम्तिहान सिक्योर्ड उस टैबलेट के अंदर सेफ है और सर्वर कॉन्स्टेंटली उसको अपडेट कर रहा होता है ताकि अगर गलती से इसकी वजह भी आपको समझा. ये बैकअप सिस्टम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम. टैबलेट मेरे हाथ में, इम्तिहान उसके अंदर सेफ है, मगर जो लोकल सर्वर है वो भी हर 30 सेकंड के बाद उसको अपडेट कर रहा होता है. क्यों? अगर खुदा ना खास्ता टैबलेट पड़ी है, बच्चा के हाथ में पानी है, टैबलेट गिर गया, टैबलेट चल, उसी वक्त हमारे पास बैकअप टैबलेट है, हम पकड़ा सर्वर में उसके सारे जवाब मौजूद है, फौरी टैबलेट बैकलोड होगी और टैबलेट में उसका इम्तिहान वापस आ जाएगा. ये सो इन बच्चों को ये गलत फहमी की दूर कर देनी है हमेशा के लिए कि इसमें टेक्नोलॉजी में कोई मसला नहीं है. रोजाना हम सिस्टम चेक कर रहे हैं, कीज भी रोज वेरीफाई हो रही है, एवरी डे एवरीथिंग इज वेरीफाइड. आपने सुना होगा कुछ दिन पहले एक हमारे सेंटर में हमने इम्तिहान एक सुबह का सेशन वो जी, और उस पे फौरी मैंने देखा सोशल मीडिया पे शुरू हो गया जी, इंटरनेट गिर गया, ये हो गया, पता नहीं क्या क्या. मुल्तान में जो मुल्तान में हुआ मैं आपको उसके बता देता हूँ क्या वो. इंटरनेट का फिर भाई कोई ताल्लुक ही नहीं. हमारे इक्विपमेंट लगा ना, सर्वर्स लगे हैं, राउटर्स, बहुत सारी चीजें लगी, हर चीज का एक बैकअप यूनिट लगा, वो भी एक हमारा एक बड़ा क्रिटिकल इक्विपमेंट है, वो उस दिन सुबह इम्तिहान बिल्कुल शुरू होने से पहले जब हम टेस्टिंग करते थे वो चल गया. बैकअप था, बैकअप ऑन, मगर वो बहुत ही क्रिटिकल इक्विपमेंट. और एक पॉलिसी है हमारी, बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है टेक्नोलॉजी कि भाई क्रिटिकल इक्विपमेंट जो होते हैं उनकी बैकअप जरूरी है ताकि इम्तिहान बीच में ना रुक जाए. वो पता किया इट वॉज नॉट अवेलेबल इन मुल्तान एट दैट टाइम, वो लाहौर से व्हिच मेंट के 3-4 घंटे लग जाए. इसलिए फौरी डिसीजन लिया गया, स्टॉप द सेशन. बैकअप के बाद इम्तिहान चल सकता था
बैकअप ऑन था, सिस्टम चल सकता था, मगर उसका बैकअप तीसरा मौजूद, इसलिए वो इम्तिहान रोका गया। दोपहर का इम्तिहान हुआ, सुबह के इम्तिहान को हमने रीशेड्यूल किया जब तक वो पीस ऑफ इक्विपमेंट लाहौर से ये। उसके बाद एक्चुअली हमने एक और काम किया, हमने अपने 24 के 24 सेंटर्स पे अब एक बैकअप नहीं 2 बैकअप्स ताकि वो भी इंशाल्लाह। तो इस वजह से वो रीशेड्यूल हुआ, उसका इंटरनेट से कोई ताल्लुक ही नहीं। ये तो हमने बच्चों के लिए किया टू इंश्योर कि उनका इम्तिहान सिक्योर है, कोई उसमें हल्की सी भी गड़बड़ ना हो। लेकिन ये है कि वो कहते थी 4 से 5 सवाल हमारे आउट ऑफ सिलेबस पूरे 210 के एग्जाम थे। अब पहले तो ये होता था ना, सब बच्चों का एक एग्जाम था, डिस्क्रिमिनेटरी इंडेक्स देखते थे कि भाई ये सवाल सबको नहीं आ रहा। अब इंडिविजुअल जब एग्जाम आ रहा है तो उसमें डिस्क्रिमिनेटरी इंडेक्स देख के सवाल जो है वो निकाला कैसे जाएगा, देखिए वैसे मार्क्स मिलेंगे उसके बारे में। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम बहुत सारे दुनिया में एमसीक्यू कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जहां पर रिजल्ट इमीडिएट आता, उनका डिस्क्रिमिनेटरी इंडेक्स का एक मेथोडोलॉजी है, वो एक्चुअली वो सारा एग्जाम एनालिसिस उससे पहले किया जाता है क्वेश्चन बैंक, वो क्वेश्चन बैंक को एक्चुअली सॉल्व किया जाता है, वहां से डिस्क्रिमिनेटरी इंडेक्स क्रिएट तो वो हो चुका। इसके बाद एक फाइनल रिजल्ट के बाद भी डिस्क्रिमिनेटरी एनालिसिस करेंगे पूरा ए टू जेड। अगर देखिए लेटेस्ट और बहुत कम होता है, जब चांसेस आर प्रॉब्ली 0.1%, 0.01%, कि अगर लेटेस्ट एक सवाल निकल आता है जिसपे हम एग्जाम एनालिसिस के बाद कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी इंडेक्स, स्ट्रेट अवे होगा क्या, एवरी चाइल्ड विल गेट 1, ये। मगर वो मैंने आपको कहा, वो जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस हैं वो यही है कि वो बहुत मुश्किल से कभी कभी कोई 0.1% चांस होता है। और देखिए हमारी तो एक पॉलिसी रही है, हम ट्रांसपेरेंट हैं, हम लोग कोई चीज छुपा जो होगा हमको। लास्ट ईयर भी आपको याद है कि हमने एग्जाम के बाद पूरा एनालिसिस पब्लिक किया था कि नहीं किया, इससे पहले किसी ने किया है कभी कोई? तो फिर जब हम ये करने को तैयार, ये कभी कोई ये नहीं करेगा कि उसने कुछ छुपाना, हमें छुपाना कुछ नहीं। वी वांट द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द चिल्ड्रन, और हमें ये भी पता है कि इस पे कुछ वक्त लगेगा कि बच्चों को ये ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पूरी तरह से आएगा। वो 1-2 दफा करेंगे, प्रोसेस में गुजरेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नया सिस्टम है, नया तरीकेकार है, और शायद इतनी ट्रांसपेरेंसी किसी के हालत से उतर इस वक्त नहीं रही है, क्योंकि हमने तो यही देखा है कि हम लोग एक्सेसिबल है, हमारी एक ओपन डोर पॉलिसी है, ऑनलाइन बात करते हैं, सोशल मीडिया पे बात करते हैं, फोन पे आपके काउंसिल के मेंबर्स हैं, अथॉरिटी के मेंबर्स हैं, सब हो गए लोग, बच्चे उनको मैसेजेस कर, मुझे कल रात को 1-1 बजे तक बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। तो देखिए शायद इसकी वजह है क्योंकि हम एक्सेसिबल है, तो शोर भी ज्यादा है, जाहिर बात है कोई मौजूद है सामने तो ज्यादा शोर मचा सकते तो मचा रहे। वो सारे आपके एग्जामिनिंग अथॉरिटी जहाँ पे फोन नंबर तक नहीं किसी के पास फोन कर देता, उनके ऊपर कुछ नहीं मसला, यही तो वो दैट्स ऑलराइट, वी आर ओके विद दिस। हमें पता है टाइम लगेगा, एंड हमारी जिम्मेदारी कि हम स्लोली उनको इस सिस्टम में और प्रोसेसेस में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दें। अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन में हर सब्जेक्ट में नॉलेज गेन की, हम सिर्फ टेस्ट ये कर रहे हैं कि जो आपने नॉलेज गेन की है क्या सचमुच वो आपने गेन की है, या आपने उस इम्तिहान के लिए 2 महीने लगा के रट्टे मार के मेमोराइज कर। मुझे बच्चे बार बार पूछे, सर मुझे 10 दिन और चाहिए। मैं कहती जी 10 दिन क्यों चाहिए, क्या 10 दिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको याद हो जाएगा? अगर आपने वो पढ़ा नहीं था 2 साल में और उसकी आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, 2 महीने के रट्टे में आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं समझ सकते ना हो। मैं तो आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ भी नहीं आप समझ पाते। आप ये कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़े होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए क्लियर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी बच्चे को डर नहीं होना चाहिए, वो जाके ध्यान दे सकता हूं, मैं आपको लिख के दूं। अगर जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर थे वो एमडीकैट में जब के हिसाब से हमने पूछा कि 6,000 रुपए फीस है, तो उन्होंने कहा जी एक फिजिकल एग्जाम, 2 एग्जाम है, एक प्रैक्टिस है, तो आपने टेस्ट पर लेकिन वो नहीं, उससे टेस्ट डेवलप होगा, अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि एक्चुअल स्टिमुलेशन सिस्टम वो तो ऑनलाइन है, उसमें समझ वो जो आप कह रहे हैं मॉक एग्जाम की बात कर रहे हैं एट द सेम, देखिए उसमें मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम निकाल देता है। वो था कोविड, जो सर्टेन लॉकडाउन आप लोगों ने उसके ऊपर हमें एडवाइस ये नहीं दिया कि ना करिए, ये आप 2 दफा करिएगा, इसको कंट्रोल करना होगा। आपने देखा है कि इवन फॉर दिस एग्जाम आपका हर सेंटर स्ट्रिक्टली अंडर एसओपीज फॉलो हो रहा है, इवन दो देयर वर अ लॉट ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस।
किसी भी एग्जाम सेंटर में हमारा जो 24 एग्जाम सेंटर्स हैं 150 से लेकर 250 तक बच्चे, और इसीलिए सुबह शाम दोनों सेशंस करें ताकि बच्चे ज्यादा ना हो एसओपीज पर, इसलिए मॉक्स बिकॉज ऑफ, मगर प्रैक्टिस एग्जाम्स ऑनलाइन अवेलेबल जिससे बच्चे को एनवायरमेंट का भी पता था कि एनवायरमेंट ये है। दूसरा, हमने बार बार ये बात की कि प्लीज ये आप कर लीजिए, फ्री में है, एक टेस्ट को कर लीजिए, क्यों आपको समझ आ जाए। नहीं देखिए मसले, मैंने भी इसको क्लैरिफाई बड़ी दफा, मसले का इशू नहीं, हमने बार बार कहा था ये इम्तिहान फाइनल नहीं है क्वेश्चन में, ये प्रैक्टिस इम्तिहान। क्यों आइडिया देने के लिए, ये सवाल किस तरह के बने, लेकिन आइडिया गलत क्या? नहीं आइडिया गलत नहीं था, बिल्कुल गलत है। सवाल थे वहां, सवाल तो पढ़ते। इस वक्त मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं क्या सबसे बड़ी असेसमेंट आ रही है। बच्चे जवाब पहले पढ़े, सवाल उसके बाद, वो सबसे पहले उनकी आंख को 4 ऑप्शन देता है, फिर सवाल पढ़े। पीछे से अकेडमी में रटे मारे, वो सवाल का जवाब देते हैं, ये जवाब, अब उसके बाद सवाल शुरू करते हैं पढ़ना, आधा सवाल पढ़ते हैं फौरी उसको सिलेक्ट करते हैं। ये गलती है, ये सवाल वो नहीं है जो किसी अकेडमी के पास। असेसमेंट किस डेटा की? क्या मतलब ये असेसमेंट जो है आपको पहले दिन मैंने कहा था आर्टिफिशियल बेसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिस, वो तो ये तो दे सकता है कि सवाल पहले पढ़ना है या आपको अंदाजा नहीं इस सिस्टम का क्या है। ढूंढ रहे हैं, आपका दिमाग ढूंढ रहा है, आपने रट्टा मारा तो आपका दिमाग टेक्निकली ढूंढेगा। नहीं, रिकॉल बेस पे है ना, तो रिकॉल पे ऑटोमेटिक मिलेगा। रिकॉल के ऊपर सवाल तो देखिए, रिकॉल जवाब के पास है, बट ये रिकॉल का मतलब ये कौन सी साइंस में रिकॉल का मतलब ये है कि एग्जैक्ट वही सवाल होगा, वही जवाब होगा, इसको रट्टा कहते हैं, इसको रट्टा कहते हैं, रोट है, ये रिकॉल नहीं है। लेकिन ये जो आप फिगर देखें, जो आपने अभी बताया कि असेसमेंट में, क्योंकि ये तो डेटा ही बता सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी एग्जाम ऐसी भी होगी कि जो सवाल देख के जवाब देती होगी ना, बिल्कुल, और वो पास होगी माशाल्लाह। मैं आपको ये तो आपका ओपिनियन है, मैं आपको सिंपल चीज बता सकता हूँ, हजारों बच्चे पास हुए, हजारों फेल हुए, बट ये कौन से इम्तिहान में लिखा है कि कोई बच्चा फेल होगा? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं। लेकिन मसला ये है ना कि देखिए, पहले ये होता, पाकिस्तान में ये होता रहा था ना कि हर बच्चा जब एग्जाम देख के आता था ना भाई, तो वो कहता 180 नंबर, मेरे 180 नंबर है। जब चीज आती थी ना तो 120, 130, 140, 140। अभी वो कह रहा है कि यार देखिए, मेरे पास कोई सिस्टम के पास है, मेरे पास। इसका जवाब दिया। देखिए बड़ा सिंपल बात है, यही तो अनोखी बात हो रही है, यही तो मसला है। नहीं मसला नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात। इस सिस्टम में जो लोगों की नजर में नहीं, ये तो फिर सिस्टम खराब हो गया, इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक भाई, अगर आप एक सिस्टम में और आप इम्तिहान देने जा रहे हैं, आपको इम्तिहान की एक्सेप्टेंस करनी जरूरी है। अगर यहाँ पे हम ये कर दें कि हर बच्चा इम्तिहान दे के एग्जामिनिंग बॉडी के ऊपर सिर्फ उंगली उठा दे, तो फिर तो कोई इम्तिहान ही नहीं मानेगा। अगर कोई इम्तिहान नहीं मानेगा तो क्योस अनार्की क्रिएट कर देगा। क्या ये सिस्टम आपको चाहिए इस पॉइंट पे? नहीं, मसला ये है, लेकिन ट्रांजिशन अभी आप खुद कई बात एक सेकंड, आपका एचईसी ने भी लगा दिया यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, ये लगाया ना? क्या आप लोग मुझे ये बताइए, वहां पे क्यों शोर मचा? नहीं, लेकिन वहां पे जब फेल होंगे बच्चे तब शोर मचा। मसला ये है सर, मसला ये क्योंकि साहब मसला मसाइल जन्म लिए वो जब आपने एक आप ही स्टेटमेंट आपने कहा कि भाई पेपर आपने कहा बन चुका है, उसके बाद सिलेबस रिवाइज हुआ, सिलेबस बाद में रिवाइज हुआ, आपने पहले स्टेटमेंट दी, पेपर बन के सील हो गया, वही पेपर एकेडमिक बोर्ड ने अप्रूव भी किया, जिसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट कायम होने लग गया। अब ये मसला है ना, इसके ये प्रोग्रेस कर, मगर एक चीज बिल्कुल आप सही, एक चीज समझिए कि मैंने तो सच बोला, जो हुआ था सच बोल रहा, उसके ऊपर भी अगर डेफिसिट ही आना है, ट्रस्ट डेफिसिट, तो मैं क्या कीड़े निकालने तो 20 में निकाल लीजिए, रिजल्ट उससे चाहिए, ठीक है। इम्तिहान है, फर्क सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूँ, इस इंस्टीट्यूशन में फर्क ये है पास्ट में और इसमें, कि हम लोग खुलेआम बता देते, ट्रांसपेरेंटली बोलते और सच बोलते, ये फर्क, ये शायद लोगों ने इसकी गलत मतलब निकाल लिया उनके हिसाब से। ये अगर है तो इसमें बैठ के यहाँ पे डिबेट शुरू कर दो, कर लीजिए, आपका हक है डिबेट करना, मैं मौजूद हूँ, पूरे कमीशन मौजूद है, हम सब जवाब देते हैं, मगर देखिए इसका ये मतलब नहीं है कि ये उंगली उठा उठा के आप एक सिस्टम को गिरा देंगे, वो नहीं गिरेगा। ये सिस्टम है, ये इंस्टीट्यूशन है, ये हम अपने बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। जो एमडी-कैट कराते रहे पीएमडीसी में, उनके बच्चों की पेपरों की क्वालिटी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर प्रोविंस में अलग क्वालिटी की जाती थी, होता था, बच्चा किसी प्रोविंस से 100% ले रहा होता था, किसी प्रोविंस में 70% ले रहे होते। देखिए वो भी तो सिस्टम में प्रॉब्लम,
تو ٹھیک کر رہے ہیں نا پرابلم سینٹرلائز اچھا پوچھتا ہے ہمیں اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر مجھے ایک چیز سمجھائیے میڈیکل میں کیوں سب سے زیادہ شور؟ کیونکہ ہمارے ملک میں اپرچونیٹیز مسئلہ ہے کہ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ نظر آتی ہے کہ نہیں. اچھا مجھے ایک چیز میں بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے یہ جو بچہ خدا نہ امریکہ پہ فیل ہوتا اب آپ اس کو کیا کہیں؟ ہمارے معاشرے میں نالائق کریں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ محمد جناح صاحب یہ ڈاکٹر نہیں، یہ نالائق میں نالائق، میں تو مان گیا میں نالائق. کیا مطلب کہ اس ملک کا ہر جج نالائق ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر نہیں؟ مسئلہ اس ملک کا ہر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نالائق ہے. یہ ہے کہ یہ بتائیے مجھے. لیکن مسئلہ یہ یہاں سے کہاں سے آپ بچوں کو جب اسکول میں ہوتے ہیں نا تو آپ کو بتاتے ہیں کہ کامیاب ہو انجینئر یا ڈاکٹر بنو، یہ کامیابی کا معیار ہے پاکستان میں. اگر آپ یہ سوچیں کہ تیسری چیز ایک دم سے لے رہے تو ایسے نہیں آئے گی. تو آپ کا کامیابی کا معیار سیٹ کیا گیا، یہ معیار گھروں میں شخص ہے. یہی مسئلہ. تو پھر یہ ماں باپ کی ذمہ داری، میں باپ ہوں، یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ ہم اپنے بچوں کو یہ چیز سمجھائیں کہ دیکھو تم بچے، ہر بچے کی اپنی قابلیت ہے، ہر بچے کی اپنی میک اپ ہے، اور اس بچے کو یہ کانفیڈنس دینا ہماری ذمہ داری، ٹیچرز کی ذمہ داری، اسکولس کی ذمہ داری کہ بچے کو کانفیڈنس کہ دیکھو تمہاری قابلیت ایک اور چیز ہوتی ہے، انٹیلیجنس وہ ایپٹیٹیوڈ ایک چیز ہوتی ہے، وہ کل جا کے کس چیز پہ اپلائی کی جائے وہ ایک اور چیز. ایک بچہ ماں ڈاکٹر وکیل ہو، انجینئر ہو، آرکیٹیکٹ ہو، پوئٹ، کیا ہم فیض احمد فیض صاحب کو کہیں گے کہ وہ نالائق تھے، کہ وہ ڈاکٹر نہیں تھے؟ ٹھیک ہے، تو کچھ بھی ہو ہر آدمی جو اپنی قابلیت ہوتی ہے اس سے سوسائٹی میں کوئی بہتری نہیں، سوسائٹی کے لیے کچھ کام کرتا ہے. بھائی دیکھیے یہ مت کریں کہ یہ کریٹ کر دیں عجیب و غریب سچویشن کہ یہ کہنا شروع ہو جائے کہ اگر ڈاکٹر نہیں تو سب نالائق. اس کا ایک اور بنیادی وجہ نا ہمارے ملک میں آپ کے ایم ڈی کیٹ کے کئی بچے ہیں جو فیل ہوئے ہیں پاس میں، اور آج الحمدللہ دوسرے پیشوں میں آگے آگے ہیں. لیکن میں ہر طرح کے آپ کو کروا دیں گے، ایسا کیا بات. چلے سر، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. وہ پتہ نہیں کس چیز کی وجہ مجھے